Hello, is it audible? Yes, sir, you're audible. Okay, thank you. అసలు అమ్మ చూడలేదు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో వేసేది నాకు చూసాను వాట్సాప్ లో హలో ఆమె ఆడదు హలో Am I audible now? Yes, ma'am. We can hear you. Shall we start? I welcome all the participants to today's webinar. That is today's topic is unlocking the potential in milk and goat rearing for the agripreneurs. This is the 46th agripreneur webinar. It's organized by Manage to encourage the top 12 MPX the India. So I would like to brief about Manage for this 5 minutes and then we start the webinar. Before that, I would like to invite today's speakers, Dr. Jaivan Jagtap sir, Nodal Officer. Actually, this webinar is hosted by the DY Patil Education Society, KV Plus, Kolhapur. I welcome you, sir. And today's two agripreneur speakers. First one is Sushil Kumar, sir. And next one is Omkar. So, going to the a brief on ACADC scheme. This ACADC scheme is a central sector scheme. It was implementing currently in 108 NPA in the state, covering all the states. Every year, the scheme has trained 5,000 about 5,000 of candidates every year. This provides Spotify Day residential training with the handholding and handholding support to the trained candidates. The objective of the scheme is to promote the rural extension to the established agri ventures in the rural areas, and also to provide the self-employment for the unemployed agri and allied sector graduates. So I would also like to brief about the NTI. This NTI, since inception, it has completed 10 training programs by training 336 candidates, and it has established 206 agri ventures in Maharashtra with a success rate of 61%. This NTI has stand second in the country in implementing the scheme and first in Maharashtra state. So I congratulate on behalf of Manage. And with this introduction, I would like to invite Dr. Jaivan sir to start the session.
Sir, Okay, thank you, madam. sir, I will share the PPT, sir. You please start the Yes, presentation. yes, madam. Yes. Is it audible, madam? Yes, yes, sir, it is audible. Okay. Madam, this is second one. Yes, yes, sir, I will share it. File name is ACABC KBK Kolhapur. Yes, yes. It's visible, sir, now? Yes, yes. Can you zoom it? Yes, sir. Yes, madam. Can I start, madam? Yes, yes, sir. Please do. Good morning, everybody. Myself, Jaivan Jagtap. I am the senior scientist and head and nodal officer from DY Patil Education Society's Krishi Vignan Kendra, NT National Nodal Training Institute from Kolhapur district from Maharashtra. I once again welcome all the participants who have joined this. I also thanks Manage Hyderabad for giving us opportunity to to guide the to organize this seminar and giving the speak. Next, please, madam. Next slide, please. As far as this DY Patil group is concerned, this group is established by our founder president, Dr. DY Patil, who is a Padma Shri awardee and former governor of Tripura, Bihar, and West Bengal. Under the leadership of this Honorable Dr. D.Y. Patil, our Krishi Vignan Kendra is established in 1993. And after that, this KBK is working for the farming community and rural youths and education in different areas. Our group is completed 76 years of journey and it is working in the various fields like educations in agriculture field, healthcare, then hospitality, sugar industry, then even in fitness gym, then power generation, sports, entertainment. Several institutes we are running. As far as DY Patil group is concerned, total 182 institutes under DY Patil Institute is working. 3 deemed universities are there. 4 state private universities are running under DY Patil group. Presently, more than 4.5 lakhs alumni students are there. Presently, more than 22,000 employees are working in this our DY Patil group. Presently, 1,20,000 students taking education under this DY Patil group. Our campuses in DY Patil group, in particularly in Maharashtra, in some states, other also. In particular Maharashtra, our campuses are at Mumbai, Pune, and at Kolhapur district. Next one, madam. As far as Krishi Vignan Kendra is concerned, for the development of and upliftment of the farmer community, our DY Patil group has started
this Krishi Vigyan Kendra in 1993 under the Indian Council of Agriculture Research, New Delhi. Our present president, Dr. Sanjay D. Patil, guiding us for motivating us for working hard for the farming community and the students and the entrepreneurs. Next, please. As far as working in KVK working in Kolhapur district, we are working in 6 tahsils of Kolhapur districts, particularly Hatkanangle tahsils, Radhanagari, Shirur, Shavadi, Gaganpawda and Panala. These 6 tahsils we are working in this. Total 550 tahsils in this 550 villages in the 6 tahsils. Out of that, through different KVK activities, we have covered 301 villages with several different activities like training, extension activities like group mela, farmers meeting, exposure visit, and different activities. Next, please. This is our view of our campus at Talsan, D.Y. Patil campus at Talsan, where KVK Krishi Vigyan Kendra and NTI is located. This is area comprises about 225 acres of area, and different horticulture plantations are there. Various demonstration units which is needed for the agriculture students and our nodal training institute, our ACBC student. The different units are established in this campus. Next, please. As far as infrastructure is at farm is concerned, seeing is believing. With this concept, we are established several demonstration units like hydroponic units are there, polyhouse unit is there, shed net house is there, even 17 types of horticulture plantation. Our farm is there. Exotic vegetables we are producing and supplying to the different cities. Even we are exporting mangoes from our farm. We are state of art. Our dairy farm unit is there. It is attached with the milk processing units also there. Even having briquette production unit, vermicompost production unit, nursery unit is there. Several units are running. That units are helpful for the students to get the hands-on training. Even KVK staff is also is a highly experienced staff, more than 10, 15, 20 years of experience is having staff, which helps in entrepreneurs development in the agriculture field, particularly in agribusiness course. Next, please. Our KVK achievements, significant achievements of the KVKs are, so far we have conducted more than 23,000 farmers training in different fields. As far as different extension activities are concerned, Kisal Mela, exposure visits, field days, and technology weeks and method demonstration, we have covered more than 1,39,000 farmers benefited through different activities. More than 58,000 soil health cards issued by our center for the benefit of the farmer. More than 1 lakh kgs of urea DAP briquette and NPK briquettes is supplied to the farmer. These NPK briquettes and urea DAP briquettes helps in increasing the yield of the farmer, and even the doses of fertilizer can be reduced with this use of briquettes application. More than 10,000 kg of area-specific mineral mixture is supplied to the farmer. That helps in reducing the infertility problem in milking animals and increasing the yield and also the fat percentage and SNF percentage in milk. As far as the KVK communication is concerned, more than 2 lakhs farmers are benefited through Kisan Portal. Through that, we are providing agro advisory to the farmers weekly basis. Through the social media platform WhatsApp, we have formed the 72 groups of farmers, and more than 7,200 farmers are benefited through this agro advisory service. Every week, we are sending the technology messages to the farmers through this WhatsApps. Yeah, even for technology transfer, we are using the social media platforms like Facebook, Twitter, YouTube channels, and Zoom platform. Through YouTube channel, we are getting very good response
from the farmer committee, and subscription is also very good. Technology videos are uploaded on these YouTube channels. More than 3,600 students benefited through this open agriculture education center of Yashwantrao Chavan Maharashtra University Nashik. We have educated more than 3,600 students. As far as Manage Hyderabad affiliated Desi program, we have trained 160 input dealers through this Desi program. Next, please. As far as Agri-Clinic Agribusiness Center, as told by the madam in the introduction, our center has completed 10 batches, and total number of candidates trained are 336 candidates so far covered. Because of the infrastructure availability at our nodal training center, various demonstration units are there, various cropping pattern is there, and that benefits the entrepreneur trainee to learn activities seeing by doing. Even in our campus, agriculture college is there of our own institute, DY Patil Group. Agriculture BTech Engineering College also in our campus. Even our Agriculture and Technology University is in our campus. That staff is also helpful for us to get the faculties for the training and for the practical trainings also, for practical guidance to the trainer. Because of that, entrepreneurship development in our center is very good. As told by the madam, the 61% success rate in the entrepreneurship development, 205 entrepreneurs development in our center, and our center stands second. Actually, we got in the month of August 2023, we got the best NTA award and got felicitation from the Manage Hyderabad on the occasion of Independence Day. We have bank sanctionable projects are 4 sanctionable projects, and some projects are pending with the bank already, which has to the bank. Next. As on February 2024, as far as the rank achieved by our center NTI is concerned, we are ranked first in February 2024, but presently we are in second rank. Next, please. As far as the NTA of the month is concerned, we are in the month of August. We are the NTA of the month, and we have submitted to we have submitted to 158 success stories on the because of that we are receive the award for the month of the entire month of the manager. Next, please. As told earlier, our center has got the NTR of the month award on the hands of auspice, hands of Dr. Chandrasekhar sir, Director Manage Hyderabad, on the occasion of Independence Day, 15th August 2013. Thank you for Manage for awarding us. Next, please. Dr. K. Sai Maheshwari, Assistant Director Manage Hyderabad, visited our center. This is the few pictures of this visit of Assistant Director Madam Dr. K. Maheshwari, Madam. Next, please. Madam has visited our attic unit where several technology is displaced for the trainee and farmers. Next. Madam visited our dairy unit. Next. Madam visited our pack house unit and hydroponic unit where our staff is briefing Madam about unit. As far as the successful agri entrepreneurs development is concerned, our program coordinator, Mr. Rohan Saluke, is very good experienced person, more than 10 years of
experience in training this ACBC student, and his team is also doing hard work. Because of the hard work of Mr. Rohan Saluke and his team, we got a very good success rate in the entrepreneurship development. So herewith I request Mr. Rohan Saluke sir, to give the successful agri enterprises presentation henceforth. I request Rohan Saluke sir to present. Thank you, sir. This is a lady's successful agripreneur, Mrs. Ashwini Repe. It is agro service center. This annual turnover is 4 CR. Is the best agripreneur in the Kolhapur district, because the ladies agripreneur कोल्हापुर में बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन वो एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से वो उनका खुद ने एग्रो सर्विस सेंटर चालू करके अभी तक उन्होंने 4 CR का टर्नओवर किया है. अभी वो उसका टारगेट है कि 10 CR तक हम टर्नओवर करेंगे. नेक्स्ट मैडम. हे हमारा सक्सेसफुल एग्रीप्रेन्योर कर्नाटक स्टेट से आते हैं, अमित चित्तोले जी. उनका एग्रीप्रेन्योर वो शिव मल्हार एग्री सेल्स एंड सर्विसेज है. उनके पॉन्ड्स होते हैं, उस पॉन्ड्स में वो फिश और कल्चर बेचकर उन्होंने अपना पूरा जो सर्विस दिया है वो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में उनका सर्विस देते. उनका भी टर्नओवर 2 to 3 CR है. अभी जो एग्रीप्रेन्योर के बेस्ट एग्रीप्रेन्योर के अवार्ड में जो हमने एक सक्सेसफुल भेजी है उसमें उनका नाम आता है, चित्तोले जी का. नेक्स्ट मैडम. ये हमारे सक्सेसफुल एग्रीप्रेन्योर कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के पेड़वड़ गांव से शहर से आते हैं. उनका नाम मच्छिंद्र कुंभार है. उनको अभी तक महाराष्ट्र स्टेट के 14 अवार्ड मिले, और उनका भी हमने अभी बेस्ट एग्रीप्रेन्योर अवार्ड के लिए उनका नाम मैनेज को भेजा है. उनका सक्सेसफुल एग्रीप्रेन्योर का उनका बिजनेस है, वो नर्सरी है, शुगर केन नर्सरी. उनके खुद का बेटे का भी बिजनेस है, और वो 55 ईयर के है अभी, और अभी तक वो बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं. और अगला उनका बिजनेस वो बहुत बड़ा करने वाला एक्सपेंशन वाला बिजनेस है नर्सरी का. नेक्स्ट मैडम. सचिन बनकर जी उनका पोलियो से, और पोलियो की सर्विसेज भी वो देते. उनका अभी तक का टर्नओवर 3 लाख है. नेक्स्ट मैडम. एक सक्सेसफुल एग्रीप्रेन्योर उनका पीजीआर का सेल बिजनेस है, पीजीआर प्रोडक्शन करते हैं, राहुल बोरे जी. उनका भी टर्नओवर 10 लाख है. अभी तक उन्होंने 2 to 3 डिस्ट्रिक्ट में उनका बिजनेस इस्टेब्लिश किया है. नेक्स्ट मैडम. हैंड होल्डिंग स्ट्रैटेजी के बारे में हम बताते हैं कि अभी हम हैंड होल्डिंग के बारे में जो करते हैं कि बिजनेस स्टार्टअप के बारे में, तो हमारे यहाँ हैंड होल्डिंग के लिए सेपरेट टीम है. 2-3 हमारे यहाँ स्टूडेंट है, और हमारे एक स्टाफ है. वो सेपरेट टीम हम हैंड होल्डिंग के लिए तैयार रखी है. और वो हैंड होल्डिंग टीम क्या करती है, एग्रीप्रेन्योर के घर के जाके उनको पेरेंट्स काउंसलिंग करके उनको पेरेंट को बताते हैं कि बिजनेस कैसा करना चाहिए, बिजनेस में क्या क्या है. तो वो सब उनको बता के कैंडिडेट को भी वो काउंसलिंग करके हैंड होल्डिंग करते हैं. और हम पर बैच में मेकिंग अ टीम लीडर फ्रॉम पर बैच में क्या करते हैं, हमारे यहाँ 1-2-3 कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि वो सक्सेसफुल एग्रीप्रेन्योर होते हैं, जिनका 5 साल 10 साल से बिजनेस है. तो हम उनको टीम लीडर करके जो पूरे कैंडिडेट बैच में है उनको हम बिजनेस स्टार्टअप के लिए क्या दिक्कत आती है, क्या करना चाहिए, वो सब बैंक में क्या प्रॉब्लम थी, वो सब वो टीम लीडर है वो देख लेते, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करके वो सक्सेसफुल एग्रीप्रेन्योर बनाने के लिए अच्छा वर्क करते हैं. पर बैच में हम 2-3 कैंडिडेट ऐसे रखते हैं कि वो पूरे सक्सेसफुल उनका अभी तक बिजनेस स्टार्टअप है. और हमारे यहाँ अभी तक हमने फेसबुक व्हाट्सएप पे ग्रुप किए 87 ग्रुप. हमारे यहाँ क्या है कि केवीके के 6 एडॉप्ट विलेज है, उनके विलेज में हम एग्रीकल्चर ग्रुप है फार्मर्स के, तो फार्मर्स के ग्रुप में भी हम कैंडिडेट को इन्वॉल्व करते हैं और उनके बारे में
क्या क्या दिक्कत आती है तो कैंडिडेट वो गाँव में जाके सॉल्व करते। और हमारे एक हैंड होल्डिंग के बारे में एक सबसे अच्छी बात क्या है कि एडॉप्ट विलेज हमारे एक प्लस पॉइंट है हमारे यहाँ कि एडॉप्ट विलेज जो है एडॉप्ट विलेज में हम सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है हमारे साइंटिस्ट जो विजिट में जाते हैं। तो उधर जाके जो हमारे एग्रीप्रेन्योर है तो उनको क्या दिक्कत आती है, वो दिक्कत आती है वो उधर जाके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो प्लस पॉइंट हमारा है कि साइंटिस्ट हमारे वहाँ एग्रीप्रेन्योर के होम पे जाके या बिजनेस पे जाके कोई दिक्कत आती है तो उधर जाके सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट मैडम। हम यहाँ इन्वॉल्व एग्रीकल्चर स्टेट गवर्नमेंट के करते हैं, बैंकर से नाबार्ड के है, एग्री बिजनेस कंपनी से हमारे लेक्चर के आते हैं। हर 2 मंथ में हर 1 मंथ में हमारे यहाँ कोई ना कोई एग्रीकल्चर स्टेट एग्रीकल्चर का ट्रेनिंग रहता है, प्लस प्राइवेट कंपनीज का भी ट्रेनिंग रहता है। तो वो ट्रेनिंग के लिए भी हम हमारे एग्रीप्रेन्योर को इन्वॉल्व करते हैं। और उनका भी जो कोई बिजनेस में इंटरेस्ट है तो वो ट्रेनिंग के लिए यहाँ खुद पे आता है एसीबीसी के बाद। नेक्स्ट मैडम। ये हमारा ऑपरेशनल लेवल है, वो सब जगह के सेम ही रखता है कि डाटा कलेक्शन करके प्री स्कैनिंग करके हम मोबिलाइज करते हैं कैंडिडेट को और स्क्रीनिंग लेते हैं। स्क्रीनिंग के बाद एक्सक्लूसिव मार्केट सर्वे, हैंड्स ऑन जॉब के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ वो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट पहले हुए हैं उनके यहाँ हम हैंड्स ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए कैंडिडेट को भेजते हैं। तो 2-3 दिन में जाके वो काम करता है, कोई संडे होता है तो संडे जाके काम करता है। प्लस हमारे कैंपस में जब हमारे अपने सर ने बताया कि हमारे डेमोस्ट्रेशन यूनिट है तो डेमोस्ट्रेशन यूनिट में जाके भी वो काम करके वो नॉलेज लेके अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए वो प्लस पॉइंट है हमारे यहाँ। नेक्स्ट मैडम। थैंक यू मच मैडम एंड मैनेज। Thank you, Jagdan sir and Rohit sir, Rohan sir. I would say it's a visual treat to any agripreneur by seeing this smooth infrastructure and multidisciplinary enterprises that was maintained on your KVT, sir. And also the handholding strategies and linking the students with the network of other agripreneurs. It is very appreciated, sir. Thank you for the presentation, sir. And I would like to invite Mr. Sushil, the agripreneur, to take a presentation on on his enterprise. Sir, is he ready? Yes, ma'am. I'm ready. Yes. Good morning, ma'am. Myself, Sushil Kumar. Basically, am I audible, ma'am? Yes, you're audible. Yes. Basically, I'm located in Shahuwadi, district Kolhapur. And we have a farm capacity of total 21 acres. Right now, we are dealing with poultries, goat farming, and crab farming kind of activities. First of all, I would like to request you to allow me to explain everything in Hindi so that everyone get 360-degree holistic approach of whatever work I am doing here. Okay, ma'am? Okay. Yes. सो नमस्ते एवरीबॉडी। नमस्ते, मेरा नाम है सुशील कुमार और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे उषा एग्रो अलाइड इंडस्ट्रीज ये करके मैंने अपना एक अल्टरनेटिव फार्म से यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। इस फार्म की एक ब्रांच जो है वो शाहवाड़ी तहसील में कोल्हापुर में लोकेटेड है फिलहाल। यहाँ पे हम मल्टीपल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पोल्ट्री भी होती है, यहाँ पे गोट फार्मिंग भी होती है और यहाँ पे क्रैब फार्मिंग भी होती है। आगे जाके हम यहाँ पे फिश फार्मिंग भी करने वाले हैं। फिलहाल तो हम अपने ही फार्म के लिए यहाँ पे कैटल फीड जनरेट कर रहे हैं, अपने ही फार्म पे यहाँ पे पोल्ट्री के लिए फीड जनरेट कर रहे हैं और जो भी एक्टिविटीज यहाँ पे मैं कर रहा हूँ उसके बारे में जो भी मुझे एक्सपीरियंस मिला है उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे डिटेल्स आपको देने जा रहा हूँ। आई होप कि आप अगर मैं यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक्स करता हूँ तो आप मुझे अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि मैं फिलहाल भी एक स्टूडेंट हूँ और जैसे कि हमें पता है एग्रीकल्चर इज अ नॉन स्टॉप लर्निंग प्रोसीजर। जितना भी आप सीखना चाहते हो आप सीख सकते हो। ठीक है मैम, नेक्स्ट स्लाइड लीजिए प्लीज़। ओके अभी यहाँ पे अपनी फिलहाल आज के मीटिंग का जो एजेंडा है जो कि है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ हैचरीज एंड गोट ट्रेडिंग फॉर एग्रीप्रेन्योर्स। तो मेरी कंसेप्ट ये है कि मैं यहाँ पे एक सिंगल स्टोरी मैंने फार्म बनाया है उस पर। मैम नेक्स्ट स्लाइड लीजिए प्लीज़।
जैसे कि आप देख सकते हो इस स्लाइड में जो आप देख रहे हो, ये मेरा 3D डिजाइन है मेरे इस फॉर्म का। तो ऊपर की जो कंस्ट्रक्शन है, ऊपर की जो साइड है वहाँ पे हम गोट को रेयरिंग करते हैं, और नीचे की जो साइड है वहाँ पे हम पोल्ट्री को रेयरिंग करते हैं, यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग के लिए यहाँ पे शेड बनाया हुआ है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एंट्री यहाँ पे एक रैम्प से होती है। इस रैम्प के बारे में ज़्यादा डिटेल्स मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा। डोंट वरी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, यहाँ पे बस 10 ही स्लाइड है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर की साइड में जो भी एनिमल आप रेयर करते हो, या फिर जो एनिमल्स आपके पास है पेट एनिमल, तो जैसे उसकी ड्रॉपिंग गिरती है, ब्लू कलर की जो आप टीन देख रहे हो, इस टीन से उसकी जो ड्रॉपिंग है, ये जो वट एवर यूरिनेट और एक्सक्रीट, वो जो भी आप नीचे यहाँ से निकलता है वो स्लाइड में बाजू में निकल जाता है, सो दैट कि अंदर जाके उसका कुछ इन्फेक्शन नहीं होता, और आपको अपना जो मैन्योर आपको मिलता है उस एनिमल से, वो मैन्योर भी आपको मिलता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए यहाँ पे हमने जो बनाया है उसका एक बेसिक प्रोटोटाइप आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर जो है वहाँ पे आप गोट को रेयरिंग कर सकते हो। जो आपको स्लैंटेड आपको एक शेप दिख रहा है नीचे के साइड में, तो वहाँ से जो भी ड्रॉपिंग गिरती है वो नीचे आ जाती है एक साइड में, और वहाँ से हम कलेक्ट कर लेते हैं। डेली बेसिस पे एक्टिविटी होती है। उसके नीचे जो यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है वहाँ पे हम पोल्ट्री यानी कि चिकन को हैच कर सकते हैं। नेक्स्ट लीजिए प्लीज। देखिए ये एक प्रोटोटाइप है जैसे कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये भी एक प्रोटोटाइप है। इसके बारे में और डिटेल्स जानकारी मैं आपको आगे दूंगा कि इसके नीचे आपको एक्टिविटीज किस किस तरह से करनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि ये जो शेड का एलिवेशन है वो तकरीबन आपको 7 से 8 फीट का लेना है। ठीक है, अगर आप 7 से लेके 8 फीट का एलिवेशन लेते हो तो नीचे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर अपने आप मेंटेन हो जाता है, नो मैटर वेयर यू आर लोकेटेड। आप किसी भी स्टेट में हो, किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में आप हो, अगर आप इतनी हाइट देते हो तो पोल्ट्री के लिए नीचे एनवायरनमेंट बेस्ट रहता है। दूसरी बात कि आपको यहाँ पे जो पोल्ट्री की यानी कि जैसे बोल सकते हो आप, लेग हॉर्न जो वैरायटी होती है, लेग हॉर्न यहाँ पे नहीं रखनी है आपको। यहाँ पे आपको देशी या फिर डीपी क्रॉस, कंट्री साइड चिकन, कोई भी वैरायटी आप ले सकते हो, जैसे कि सोनाली हो गई, कावेरी हो गई, वनराज हो गई। ये वैरायटी आप यहाँ पे नीचे रेयरिंग कर सकते हो। इस वैरायटी की एक खासियत है कि ये वैरायटी कभी भी रात के समय जमीन पे नहीं सोती, यानी कि वो नीचे, जैसे आप देख सकते हो नॉर्मल पोल्ट्रीज में क्या होता है कि जो पोल्ट्री का बर्ड होता है वो नीचे ही रहता है, यानी कि फ्लोर पे ही रहता है। तो यहाँ पे कंट्री साइड चिकन में होता है कि ये कभी भी नीचे नहीं सोते, इसलिए इनको इन्फेक्शन नहीं होता। रात को इनके सोने के लिए आपको ये अरेंजमेंट करनी है, जो आप सेकंड पिक में देख सकते हो। यहाँ पे जो मल्टीपल्स बाम्बू की जैसे स्लाइड्स यहाँ पे नीचे दी हुई है एक स्लोप पे। तो रात को ये जो बर्ड है वो हमेशा इस स्लोप पे ही सोता है, इसलिए उसको इन्फेक्शन नहीं होता। ऊपर से गिरने वाला कोई भी मटेरियल इसके ऊपर नहीं गिरता है, इसलिए वो हमेशा सेफ ही रहता है। यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड लीजिए मैम प्लीज। ओके, तो जैसे कि बेसिकली मैं कुछ की स्ट्रक्चर आपको बताने जा रहा हूँ गोट फार्मिंग के बारे में। यहाँ पे गोट फार्मिंग में अगर आप देखते हो तो गोट की मल्टीपल ब्रीड्स होती है। तो इसमें जो फिलहाल महाराष्ट्र में जो प्रोमिनेंट ब्रीड्स है उसमें अगर आप क्रॉसिंग करना चाहते हो तो बीटल आपके पास है, उस्मानाबादी है और संगमनेरी, ये 3 ब्रीड्स जो है वो प्रोमिनेंटली चल रही है। इसमें अगर मेल का आप वेट देखते हो तो जनरली मेल का वेट ये ऑन एन अप्रोक्स रहता है 60 kg पर एनिमल। ये मैं 1 साल के एनिमल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए कि इसका फर्टिलिटी रेट क्या है, तो तकरीबन फर्टिलिटी, और जैसे आप बोल सकते हो कि ट्विंस कितने दे सकते हैं, तो एक एक इसमें एक डिलीवरी में एट द सेम टाइम ये 53% चांसेस है कि बीटल में 2 बच्चे हो सकते हैं। उस्मानाबादी भी 2 बच्चे देती है, यानी कि 2 किड्स सबको मिलते हैं। एक आध बार ऐसा भी होता है प्रोबेबिलिटी कि वो 3 किड्स भी देती है, 4 भी देती है उस्मानाबादी में। संगमनेरी में आप देख सकते हो कि 33% या फिर 30% इसका रहता है रेशो बच्चे देने का मल्टीपल। देन अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए, आपको मिल्क के लिए कोई गोट की ब्रीड चाहिए, तो वो है बेस्ट सानेन, क्योंकि सानेन में अगर देखा जाए तो एक दिन में ये 3 से लेके 4 लीटर तक का दूध दे देती है। देन आफ्टर उसका अगर वेट देखा जाए तो उसमें मेल का वेट होता है ऑन एन अप्रोक्स 90 kg, और फीमेल का अडल्ट फीमेल का वेट रहता है ऑन एन एवरेज 70 kg।
अगर आप कभी भी इस गोट फार्मिंग में अगर आप एनिमल लेने के लिए जाते हो तो आपको ये देखना है कि उसका जो एज है वो तकरीबन 1 साल के ऊपर ही होना चाहिए, 1 से लेके 1.5 साल। देन आफ्टर ही इज टू 30 kg एटलीस्ट। और एक बहुत सी प्रोमिनेंट एक बात जो मैंने एक्सपीरियंस की है वो ये है कि इसमें यानी कि गोट में मेल और फीमेल ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक देखी जा सकती है। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जा सकती है, इसलिए जब भी आप एनिमल लेने जाते हो मार्केट में आपको ये बहुत ही सावधानी से चेक करके लेना होता है कि एनिमल आप जो ले रहे हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, इसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस होल्डर बंदा साथ में लेके जाना होगा। नेक्स्ट, अगर आप इस तरह का हाइब्रिड मॉडल फॉलो करते हो तो आपको कंट्री साइड चिकन की ये 3 वैरायटी मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि आप कंट्री साइड प्रॉपर देसी चिकन फॉलो कर सकते हो, या फिर कावेरी या फिर सोनाली। ओके मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए यहाँ पे आपका फार्म का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप फार्म में एंट्री करते हो, ये जो ब्लू कलर के आप एरोस देख रहे हो, इसका ये एक्चुअली डायरेक्शन है कि इनिशियल फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फार्म में जब आप एंट्री करोगे तो पहले क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले होना चाहिए ऑफिस, देन आफ्टर निवास, मतलब जहाँ पे रेसिडेंस, अगर आप ऑफिस के बाजू में खुद का रेसिडेंस कर रहे हो तो वेल एंड गुड। उसके बाजू में अगर आपका कामगार निवास यानी कि आपके जो लेबर्स रहेंगे उनके लिए आप रेसिडेंशियल क्वार्टर्स बना सकते हो। उसके बाद ये बस ध्यान में रखना है आपको कि ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम्स दिए या फिर ब्लॉक्स बनाए, ये हर एक ब्लॉक के अंदर इन बिटवीन आपको कम से कम 8 मीटर का डिस्टेंस रखना है। ठीक है, अगर आप 8 मीटर का डिस्टेंस रखते हो तो इससे कंटेमिनेशन नहीं होता, आप पूरी तरह से आप और आपका एनिमल सेफ रहता है। जो नेक्स्ट ब्लॉक आप देख रहे हो उसमें मैंने लिखा है गोदाम। गोदाम का मतलब है जो भी फीड आप बनाते हो उस फीड के लिए आपको एक स्टोरेज बनाना होता है। देन आफ्टर आपके पास होनी चाहिए एक रिकॉर्ड रूम, क्योंकि बुक कीपिंग ये एक इसेंशियल आइटम है। अगर बुक कीपिंग आप नहीं करते हो तो एनिमल हस्बेंड्री या फिर गोट रेयरिंग या फिर पोल्ट्री में आप सक्सेस नहीं होंगे, इट्स अ डैम श्योर। नेक्स्ट ब्लॉक, अगर आप बाहर से कोई एनिमल परचेस करते हो, मान लो आपके पास ऑलरेडी एक 100 एनिमल्स का 100 एनिमल्स का एक फ्लॉक है, और आप बाहर से अगर 20 एनिमल्स 30 एनिमल्स 50 एनिमल्स कुछ परचेस करके एक फ्लॉक नया लाते हो, तकरीबन 30 दिन तक आपको उन सभी एनिमल को क्वारंटीन करना होगा। इसलिए आपको ये थर्ड ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है नवीन आणलेल्या प्राण्यांचा विलगीकरण कक्ष। दैट मीन्स यू हैव टू मेक अ क्वारंटीन फॉर दोज न्यू एनिमल्स। ओके, देन आफ्टर द फोर्थ वन इज किड्स सेक्शन एरिया। आपके पास छोटे बच्चों के लिए एक किड्स सेक्शन सेपरेट एरिया होना चाहिए। दूध देने वाली जो भी आपके पास भेड़ बकरी है उनके लिए आपके पास सेपरेट सेक्शन होना चाहिए। देन आफ्टर जो प्रेग्नेंट गोट्स है उसके लिए आपके पास सेपरेट एक सेक्शन होना चाहिए। ये बहुत ही मैंडेटरी है, क्योंकि एक साइकोलॉजी है एनिमल की, अगर दूसरा एनिमल एक एक अगर फीमेल प्रेग्नेंट रहती है और दूसरी नहीं रहती तो जो पहले वाली प्रेग्नेंट है उस पर ये अटैक करती है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी प्रोजेनी आगे नहीं जाएगी। इस साइकोलॉजी को डिफेंड करने के लिए आपको मल्टीपल आपके पास सेक्शंस होने चाहिए, ये मैंडेटरी है। द सेकंड लास्ट वन इज, यहाँ पे लिखा है कि आपके पास जो ब्रीडिंग का बक होगा, यानी कि ब्रीडिंग का जो भी आपके पास मेल होगा उसके लिए आपको एक सेपरेट कंपार्टमेंट होना चाहिए। देन आफ्टर आपके पास जो ऐसी गोट्स होगी कि जो अभी जो दूध नहीं दे रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है उनमें, या फिर उनसे बच्चे नहीं मिल रहे, तो उनके लिए आपको सेपरेट कंपार्टमेंट रखना होगा। और जो भी आपके पास अडल्ट है, अगर उनमें कुछ क्वालिटीज नहीं है या फिर आपको लगता है कि इनको क्वारंटीन करना चाहिए फिर बेच देना चाहिए, उनके लिए भी सेपरेट कंपार्टमेंट होना चाहिए। और जो लास्ट सेक्शन होना चाहिए आपके फार्म का, वो होना चाहिए उसमें चाफ कटर। दिन आपकर मैंने नीचे लिखा है मुर्घास यानी कि साइलेज, चाफ कटर, साइलेज, और जो भी मैन्योर आपके फार्म से निकलेगा वो मैन्योर स्टोर करने के लिए आपके पास एक जगह होनी चाहिए। यही फ्लो होना चाहिए, ये एक आइडियल नोबल फ्लो है इस टोटल फार्म के स्ट्रक्चर का। ठीक है, और एक बात जो मैंने नीचे जो 2 पॉइंट्स लिखे हुए उन पे आप गौर करिएगा। नीचे मैंने लिखा है कि डिपिंग टैंक जो है आवश्यक है। इसका मीनिंग ये है कि आपके एनिमल अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन, कंटीजियस इन्फेक्शन या फिर किसी तरह का उनमें अगर कोई भी अगर बीमारी आती है तो उससे निपटने के लिए आपके पास डिपिंग टैंक अवश्य होना चाहिए, जिसमें आप अपने एनिमल को डिप करके आप बाहर ला सकते हो, सो दैट कि उसका जो इन्फेक्शन है वो कम से कम होगा और जल्दी वो रिकवर होगा। ऑल राइट मैम, नेक्स्ट लीजिए प्लीज। यहाँ पे है फीड, चारा। चारा यानी कि फीड। तो फीड आपके पास क्या होना चाहिए और फीड के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है,
हर एक अडल्ट एनिमल के लिए पूरे साल भर कम से कम 2000 स्क्वायर फीट जमीन की आवश्यकता रहती है। 2000 स्क्वायर फीट कम से कम लैंड उसको रिक्वायर्ड है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि उसको फीड कितना चाहिए। तो अगर आपके पास गोट रेयरिंग आप कर रहे हो तो कम से कम उसको फीड लगता है 4 kg पर डे। और अगर 4 kg में आप काउंट करते हो तो उसमें तकरीबन 33% जो रहता है यानी कि 1.5 किलो, ये हमेशा ड्राई फोडर ही होना चाहिए। क्योंकि जो भी वो इनटेक करती है, अगर वो सिर्फ यानी कि आपकी फीमेल गोट अगर हमेशा हरे यानी कि ग्रीन फीड पे ही रहती है तो वो आपको जितना वेट गेन होना चाहिए उतना एफसीआर वो नहीं देगी। ठीक है, नेक्स्ट यू कैन सी यहाँ पे मैंने शेड मेंशन किया है। तो शेड कैसा होना चाहिए, ये एक प्रोमिनेंट चीज है जिन पे हमेशा लोग गौर नहीं करते। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि अगर आपका एरिया ड्राई है, ड्राई और हॉट है, तो इस एरिया में आपके शेड की जो लंबाई होगी वो हमेशा पूरब और पश्चिम ही होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर आपके शेड की लंबाई पूरब पश्चिम होगी तो उस केस में जो सूरज की किरणें होंगी वो आपके शेड में नहीं आएंगी। ठीक है, वो नहीं आएंगी। और अगर आपके पास कोल्ड एरिया है और ह्यूमिड एनवायरनमेंट होगा तो शेड की जो लंबाई होगी हमेशा उत्तर दक्षिण होनी चाहिए, सो दैट कि मैक्सिमम जो सनरेज है वो आपके शेड में आ सकेगी। नेक्स्ट, अगर आप शेड बनाते हो तो इसमें रैम्प जो होना चाहिए वो उसका जो रेशो है, रैम्प का जो स्लोप है वो हमेशा 33% से कम होना चाहिए। अगर 33% से ज्यादा होगा तो उस पे आपके जो भी एनिमल है, वो किड्स होंगे या फिर अडल्ट गोट होगी, वो इजीली ऊपर नहीं चढ़ सकती। और अगर आपके पास आपके रैम्प पे यानी कि एंट्री के पोजीशन पे अगर आपके पास स्टेप्स होंगी तो उस स्टेप्स में या फिर स्टेयर्स में 15 इंचेस से ज्यादा वो बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इससे अगर बड़ी होती है तो जो प्रेग्नेंट गोट होती है वो ऊपर नहीं जा सकती, नीचे नहीं आ सकती, उसको तकलीफ होती है। ओके, आपका जो शेड होना चाहिए उसकी जो छत होगी वो हमेशा ए शेप की ही होनी चाहिए। सेंटर से उसका जो हाइट होगा वो तकरीबन 14 फीट का होना चाहिए। और अगर आप देखते हो कि शेड की लंबाई आप कितनी भी रख सकते हो, नो मैटर, बट उसकी जो विड्थ होगी वो तकरीबन 40 फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये एक आइडियल है, रेशो है इसका, ये मेरा एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट प्लीज। अगर आप ट्रांजिट करते हो यानी कि कहीं से एक जगह से दूसरी जगह पे आपके एनिमल्स ले जाते हो तो इस केस में आपको ये देख के चलना होगा कि अगर आप नाइट में जर्नी कर रहे हो तो आपके व्हीकल में थोड़ा सा तो लाइट होना ही होना है। अगर लाइट नहीं होगा तो वो एनिमल जो है आपके, वो डर के मारे एक दूसरे के ऊपर वो जंप करने स्टार्ट कर देते हैं और वो हमेशा हर्ट हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इसमें लिखा हुआ है कि जैसे आप ट्रांजिट करते हो तो उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने दोपहर में एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह पे आप लेके जा रहे हो और उसको हीट के कुछ आपको ज्यादा ही सिम्टम्स दिख रहे हैं कि एनिमल्स हमेशा हाफ रहा है या फिर उसके मुंह से कुछ सलाइवा नीचे आ रही है, ऐसा अगर आपको कुछ दिख रहा है तो बेटर वे होगा कि आप उसके हेड पे यानी कि उसके फोरहेड पे या फिर हेड पे टोटली आप थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दीजिए। अगर ठंडे पानी से हेल्प होती है तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है। ठीक, द नेक्स्ट वन इज यहाँ पे लिखा है कि जैसे अगर आप 12 घंटे या फिर 12 घंटों के ऊपर अगर ट्रांजिट करते हो तो कम से कम 3 दिन तक वो एनिमल आपका स्ट्रेस में रहेगा। इसलिए आपको स्ट्रेस कम करने के लिए विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, इन सभी का इस्तेमाल करना होगा उस एनिमल पे। और लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि इस एनिमल को ज्यादा इन्फेक्शन नहीं होता, यानी कि ये एक ऐसा एनिमल है जो खुद की केयर खुद रख सकता है, पर फिर भी जो मैक्सिमम इसको इन्फेक्शन होता है वो हमेशा इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही होता है। यानी कि श्वसन श्वसन हम बोलते हैं, सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना। इसी तरह से उसको जो भी बीमारियां होती है जैसे कि न्यूमोनिया, गटसर, पीपिया एक्सेट्रा एंड ऑल दोज। ओके मैम, नेक्स्ट लीजिए प्लीज। यस, देख सकते हो, आपको अगर चाहिए तो मैं मेरी पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा सभी को। इसमें अगर देखा जाए तो आपके पास एक गोट जो बक होगा, बट के क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो मैंने यहाँ पे लिखा है। मैम नेक्स्ट लीजिए। ओके, यहाँ पे भी बेसिकली आप देख सकते हो, और जो आपके पास गोट होंगी तो गोट को आप वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, यानी पे हीट पे आ रही है नहीं आ रही है, किस तरह से आएगी, वो मैंने लिखा है। आप देख सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत होंगी तो मैं डिटेल्स में मेरी पीपीटी और मेरी प्रेजेंटेशंस आपको शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट प्लीज। यस, स्ट्रैटेजी। तो जो लास्ट पॉइंट है वो स्ट्रैटेजी का इस बारे में है कि अगर आपको ये बिजनेस बढ़ाना है, आपको अगर शॉर्टकट्स इसमें लेने हैं तो शॉर्टकट एक बेहतर यही होगा
कि आप मार्केट से डायरेक्टली बच्चे परचेस करके लेके आओ, यानी कि किड्स, आपको किड्स परचेस करने हैं और तकरीबन 2.5 मंथ्स के या फिर 3 महीने के होंगे। 3 महीने का अगर आप बच्चा लेके आते हो तो उसको रेयर करना बहुत ही ईजी हो जाता है, उसकी मोर्टेलिटी कम हो जाती है। आपको बस उसको आने वाले 3-4 महीने तक ही बेयर करना है, उसको 3-4 महीने खिलाना है और देन आफ्टर आप उसको सेल कर सकते हो, अच्छे प्रॉफिट आप कमा सकते हो। ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी। और जैसे कि आपने पहले देखा कि ऊपर गोट फार्म था और नीचे पोल्ट्री थी, तो पोल्ट्री से आपका अनलिमिटेड इनकम आता ही रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। किस तरह से लाना है वो बेटर स्ट्रेटेजी होगी और वो अलग पीपीटी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, फिलहाल मैं यही एक्टिविटी कर रहा हूँ। यस, थैंक यू मैम। Shashini, it was wonderful. And I have given a very valuable information on goat raiders. And I believe this would inspire all the agripreneurs who are interested in goat farming. And also the already established, they would upgrade their farm based on your insights and the challenges you have said and all the information. It will be really helpful. Thank you, Sushilji. थैंक यू मैम। Then we will move on to the next presentation, that is from Omkar Desai ji. Are you ready, sir? Next time, next time, yeah, just to quick do the video. Omkar ji, sir. बोलो भैया, इसका इंटरव्यू हो गया पूरा? हाँ, हो गया हाँ। ये के प्रोग्राम है। आगे ना देना सुधर के तो बहुत आम है। Hello. क्या करना है, भूल गया इस सब बस। तो जो बात ऐसे वो की दबाया था। अरे तो Hello. Am I audible? मैम शायद ओमकार सर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। Hello. Hi, ma'am. I'm audible. Can you hear me, ma'am? Hello. 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 So please Hi, continue. ma'am. Yeah, please start, sir. Can you hear me, ma'am? Yeah. I can hear you. Please start the Hi, presentation. everyone. Good morning. Thanks to Manage Hyderabad to give me the opportunity or chance to present myself. And heartily thanks to KVK DIP, Jagtap sir, Rohan sir. Let's start. I am Omkar Prakash Desai, BSc Agriculture. I am the agri entrepreneur. I would like to present my project in front of you, which name is Hatchery. Next slide, please, ma'am. Hatcheries. Next slide, ma'am. Hatchery is the facility where eggs are incubated and hatched, and then the form newborn chicks, which grown up in the future hens and cocks. Next, ma'am. Let's see units of hatcheries. There are 4 units. Parent shed, where the parent birds are reared. Then cold room, where we put up the eggs. Then setter room, then hatcher room. Next slide, ma'am. We will see the units in details upcoming slides. Parent birds. Parent birds means the parents of chicks, where the eggs are laid. In these, there are 2 types
of parent birds. First one, in case we will rear the parent birds and there are no cocks present. The cocks we have to inject the sperms in the hens, and then we will produce the eggs. Then parent birds in free range, there are cocks are present. Then they meet naturally and they will produce the fertile eggs. Let's see about the fertile and infertile eggs. Fertile eggs मतलब जो जिसमें जान होती है, जिसमें जिस अंडे से हम चूजे निकाल सकते हैं, वो फर्टाइल एग्स होते हैं. और इनफर्टाइल एग्स जो हमारे यहाँ दुकान में मिलते हैं, जो इनफर्टाइल एग्स होते हैं उसमें मतलब वो अंडा ऐसे ही निकलता है जैसे वो मतलब हेन और कॉक का मीटिंग नहीं हुआ होता है, इसलिए वो इनफर्टाइल होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड मैम. Then cold rooms where the eggs are stored in cold temperature to prohibit the growth. This is the hatcher and setter. In setter room, there are eggs are incubated for 18 days, and then hatcher room. Hatcher room. In hatcher room, we have to transfer the eggs in hatcher machine. The eggs are in the tray now. This is done in 19 days of incubation period. In setter room, we have to put up the eggs for 18 days. These 18 days, the setter machine act like hen. Hen is the mother of upcoming chicks. She will how she will incubate or give the heat or humidity to eggs. This works, setter works done. Then we have to transfer the eggs on 19 days in hatcher room, hatcher machine. Hatcher machine will act like same setter machine, but the eggs are in the tray now. On the day 21, the chicks break the wall of egg and then turn out of the egg. Next slide, ma'am. Let's learn about the how chicks develop in the egg. To develop chicks, 1 to 21 days are required. Chicks, let's see how embryo development in this slide. Day 1 to day 20, there is the development in the embryo of the egg were formed. On the day 21, we will see the development. On the day 21, eggs break, the chicks come out from the eggs. Next slide, ma'am. Here are the chicks. These are the healthy chicks. Then we have to sort out the eggs, sort out the abnormal chicks, and then vaccinate them, and we will finish our work. And next slide, ma'am. This is the transportation crates. This is the left side box, and this is the crate, and we have to transport the chicks in this box. Per box there are 100 now chicks are there. This is the process of hatcheries. Next slide, ma'am. Thank you, everyone. This is the project of hatcheries. We have to in these hatcheries we produce the chicks, healthy chicks.
to grown up the poultry farmers, and we will guide them to give them healthy chicks. Thank you, ma'am. Thank you, Omkarji. It's a very wonderful presentation. You have shared the process of the hatchery. Can you explain more about the project cost involved in setting up this hatchery unit? Can you share us? Hello, Omkarji. Okay, so from 13 Omkarji. I'm audible, ma'am. Yes, now you're audible. Ma'am. Can you share us the project cost involved in setting up this hatchery? Can you share us with हाँ. the audience? Yes, ma'am. तो हैचरी प्रोजेक्ट्स हमें स्टार्ट करने के लिए मैम एक तो पैरेंट बर्ड होना चाहिए. पैरेंट बर्ड्स मतलब हम पैरेंट एग्स प्रोड्यूस करने के लिए वरना हम एक बाहर से भी खरीद कर सकते हैं. और पैरेंट बर्ड रेड करने के लिए हमें मैम एक पैरेंट शेड चाहिए. पैरेंट शेड, देन वी हैव टू मतलब हमें हैचरी बिल्डिंग चाहिए. इस प्रोजेक्ट में ये 3 चीजें तो चाहिए. पैरेंट शेड, हैचरी. मैम हमें एक 15 लाख तक का खर्चा आएगा ये सभी सेटिंग बिल्डिंग सब सेट करने के लिए. देन मैम हमें जब पैरेंट बर्ड रेयर करना होता है तो फर्स्ट डे से वो फर्स्ट डे से 21 वीक में मुर्गी अंडा देने के लिए स्टार्ट करती है. तब तक हमें उसकी रेयरिंग करनी होती है. तब उसकी वैक्सीनेशन, उसका खर्चा, और उसके लिए मैम वो हमारा वर्किंग कैपिटल होना पड़ता है. वो हमारा वर्किंग कैपिटल खुद का एक 3.5 to 4 लाख का वर्किंग कैपिटल हमें लगेगा. देन मैम हमें जो मशीनरी खरीदनी है, जो हैचर और सेटर मशीन, उसका मैम हम कैसे भी कर सकते हैं. हम मतलब सेटर मशीन जो है वो 5,000 का आता है और 10,000 का भी आता है. तो हमें कितना चाहिए उस पर डिपेंड करता है. मैं मैम 5,000 का मतलब 5,000 का सेटअप लेने वाला हूँ. उसमें सेटर रूम जो होता है, सेटर मशीन जो होता है वो 15,000 कैपेसिटी का होता है. और हैचर मशीन जो होता है वो 5 to 10,000 कैपेसिटी का होता है. मतलब उस मशीन में हम 15,000 अंडे लगा सकते हैं. मतलब वो साइकिल होती है अंडे लगाने की. उसमें हम 5,000 पर वीक हम अंडे हम चूजे निकाल सकते हैं. इसलिए मैम मैंने ये चूज किया है. और जो वो मशीन कॉस्ट है, वो मशीन का कॉस्ट तकरीबन 550 से 6 लाख तक आता है. वो जो सेटर और हैचर मशीन है. और मैम इस प्रोजेक्ट के लिए हमें 3 फेज का कनेक्शन चाहिए. वो मैम रिक्वायर्ड ही है क्योंकि ये जो ये होता है, ये प्रोजेक्ट होता है, इसके लिए 3 फेज कनेक्शन लगता है. और जब हमारा जो प्रोजेक्ट साइड है वो जो रूरल एरिया में आता है, तो इसके लिए जनरेटर भी होना पड़ता है क्योंकि इस हैचरी में लाइट मतलब 15 मिनट से ऊपर लाइट गया तो नहीं चलता है. वो जो हम अंडे सेट करते हैं वो खराब हो जाते. तो मैम जनरेटर मेरे प्रोजेक्ट में अभी जनरेटर भी लगता है. वो जनरेटर 15 के का चलता है. वो 3 लाख तक का आता है.
Yeah, Then ma'am, Omkarji. other equipments. Yeah, please continue. हाँ ma'am. Then other equipments in the hatcheries. Hello. Hello. Yes, please. हाँ ma'am. Other equipment? हेलो हाँ अदर इक्विपमेंट्स इन हैचरीज वो मैम एक 50,000 to 1 लाख तक का आता है इतना ही मैम इससे मैम हैचरी प्रोजेक्ट होता है So overall, the cost of the project is 15 lakhs. 15 नहीं मैम जो हमारा कंस्ट्रक्शन का वर्क है ना वही 15 लाख का जाता है Okay. देन हैचरों How से many, जो how मशीनरी many years you are gonna repay this loan? हाँ मैम How many years Hello? it will take to repay the loan? With that area that you have set up there? मैम डेढ़ तो मतलब 1.5 साल और 2 साल में रिकवर हो जाएगा Great. हाँ 2.5 years. Thank you very much, Omkarji. The very nice हाँ मैम थैंक presentation. यू ओके मैम Anyone in the parts wanted to ask anything, please raise your hand. I will unmute you. Anybody wanted to know anything about the enterprises? Any cost related questions? Rohan sir, are you available? Hello, Rohan sir. Questions from the participants. So we'll wrap it up here. Thank you, Dr. Jaivan sir, the valuable information on the KVK and the NTI. Thank you, Rohan sir, for sharing the agripreneurs success stories with us. Thank you, Sushil ji and Omkar ji, for your valuable information on the ventures. Thank you very much. Thank you. I thank all the participants who present here. Thank you very much. Yeah.